तो आज की टॉपिक है रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। वेलकम टू आवर लाइव दिया शंकर सिंह जी। Let's wait for 2 more minutes for somebody joins, otherwise we can start talking about reading between the lines. तो है क्या ये रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, कहाँ से आया है, इसकी हिस्ट्री क्या है, सब जानेंगे आज। सो रीडिंग बिटवीन द लाइन्स इज़ ए इंग्लिश फ्रेज, एक इंग्लिश की फ्रेज है जिसकी मतलब है कि आगे वाले ने कुछ कहा आपसे एंड यू आर ट्राइंग टू मेक द मीनिंग कि उसके अंदर कुछ और भी मीनिंग है, दे आर ट्राइंग टू टेल अस समथिंग एल्स। तो इसकी शुरुआत कहाँ हुई? हिस्ट्री सेज दैट दिस थिंग रीडिंग बिटवीन द लाइन्स स्टार्टेड इन द अर्ली 19th century। तब ऐसा था कि जासूस होते थे एंड दे यूज्ड टू टेक द मैसेज अक्रॉस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस and they used to share it, like whatever they spoke used to have a deep interior meaning. Hi my passion world, thank you for joining। तो उसके अंदर बहुत सारा मीनिंग होता था which was a way of they conveying the secret। तो सीक्रेट तो सबको बता नहीं सकते हैं, इट्स अबाउट ए कंट्री और अबाउट ए आर्मी और देयर माइट बी ए वॉर दैट इज कमिंग अप, ऐसा कुछ होता था। तो दे यूज्ड टू यूज दिस reading between the lines. They used to say, for example, say the lion is coming, तो इसका मतलब हो सकता है कुछ और, there may be some other interior meaning, internal meaning that you know some danger is starting or some danger is coming। तो तब शुरू हुआ था this thing called reading between the lines। उसके बाद by the end of 19th century people started using this as a normal phrase like we are using right now। तो इसका अब भी नाउ राइट नाउ इन द प्रेजेंट वी आर यूजिंग इट इन सच ए वे दैट यू नो इट इज़ ऑल्सो अफेक्टिंग आवर पीस ऑफ माइंड। क्या हो रहा है बाई डूइंग दिस रीडिंग बिटवीन द लाइन्स? हाई एनी टाइम काउंसलर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। वी कीप ऑन थिंकिंग, से फॉर एग्जाम्पल समथिंग हैपन्स एंड उसके बाद घर आते हो एंड यू कीप ऑन थिंकिंग वाई ही सेड दैट, वाई शी सेड दैट, मे बी दे मीन दिस। In a sense, psychology says that when you read between the lines, you are pushing your own creativity. If it is good, positive vibrations are रहे हैं, positive thoughts are रहे हैं, then obviously it is good. If you are pushing your creativity to extend that, you start thinking maybe they meant this, they meant this, they meant that. If it is positive, then it is adding to your good health, good mental health. And if you are starting to think रोड पे कुछ झगड़ा हो गया, घर आके यू आर स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट कि क्यों कहा, इसका मतलब वो हो सकता है, ये हो सकता था, देन थिंकिंग अबाउट द नेगेटिव इज इन ए वे यू डूइंग बैक टू योर सेल्फ, है ना। वॉट वी थिंक वी आर वॉट वी थिंक, राइट। आवर थॉट्स मेक अस, राइट, either they make us or they break us। So when we start reading between the lines, there is a very bad thing that is happening. We are also spoiling our relationships. Say for example, husband says something and wife starts thinking that maybe he meant that, he meant this, or boss says something and we start thinking इसका मतलब ये हो सकता है, maybe he wants to show me bad before all the other colleagues। इससे क्या हो जाता है? This is you pushing yourself into unnecessary, unknown boundaries of sadness and negativity। You are pushing yourself into it, nobody is taking you there। जिसने भी कुछ कहना था उसने तो कह दिया and he is happy or she is happy and the person is happy। The topic, Deepti, the topic is reading between the lines, history about reading between the lines, what is it and how we are using in the present lives। तो मैंने बताया था कि हिस्ट्री में कहाँ से आया रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। रीडिंग बिटवीन द लाइन्स केम एज ए जासूस जो होते थे इन द अर्ली 19th centuries, तो यूज़ करते थे। एंड ऑल्सो दे यूज टू यूज दिस इनविजिबल पेन्स टू राइट ऑन द लेटर्स, दे यूज टू ब्रिंग अस सीक्रेट्स, राइट, विच वेन दे केप्ट ऑन द कैंडल्स, तब तो सारे कैंडल्स ही होते थे, तो वेन दे केप्ट ऑन द हीट then they used to see whatever is written on the paper। तो this came from that place। okay, तो अभी हम क्या कर रहे हैं right now? Hi Vaishali, thanks for joining। now we are using it as a super power। we feel very intelligent and very clever कि मुझे तो पता है ये क्यों कह रहा है, I know why he is or she is saying this, and then our creativity flows like anything।
and we keep on adding एक के बाद एक, we keep on, maybe she meant this, maybe he meant that, right? And what happens is, if it is positive, then adding to our positive hormone, happy hormone, and if it is negative, then the stress hormone flows. And who is the culprit here? Whom to blame? It's we who have done that, right? We are only overthinking, we are only thinking that we are very intelligent and clever people who can read between the lines. पर इसका actual मतलब ये नहीं है. It was used then for secrecy sake. अभी हमें चाहिए ही नहीं. दिया शंकर जी, आप हिंदी मीडियम हो तो मैं हिंदी में भी बात कर रही हूँ. What do you suggest to control to the urge to be a जासूस? Better don't be. वो मैं एंड में बताऊंगी क्या करनी है, so that you don't read between the lines. Take it on the face value of the person, whatever he or she says. If the boss is saying that I need a bit more improvement in your presentation or something else, performance थोड़ा अच्छा हो सकता था, then take it on the face value that he meant he wants you to improve. Finish हो गया, छोड़ दो वहाँ पे. And हाँ, इसको कैसे हम अपनों के फॉर आवर सेल्स यूज़ कर सकते हैं. हाउ कैन यू यूज़ इट फॉर योर सेल्फ? खुद के लिए कैसे यूज़ कर सकते हो? अगर आपको लगता है कि उसमें कुछ नेगेटिव छुपी है, वॉट एवर दे सेड, देन डायरेक्टली गो टू दैट पर्सन एंड देन आस्क देम, राइट? डू यू मीन दिस? वॉट इज़ द इनर मीनिंग? डू यू मीन दिस? हाँ, तब क्या हो जाएगा? तब अदर पर्सन विल अंडरस्टैंड दैट यू आर नॉट लिविंग इट देयर. सुन लिया, उसके बाद छोड़ दिया, नहीं, पर यू आर गोइंग इन डीप इन टू इट एंड देन आस्किंग देम बैक दैट व्हाट डू यू मीन बाय दिस, राइट? जब आप ये पूछोगे व्हाट डू यू मीन बाय दिस, ही विल बी कॉशन्ड दैट नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर टॉकिंग, बेटर डोंट टॉक विद डबल मीनिंग्स. सबके सामने आके मुझसे पूछेगी या मुझसे पूछेगा, देन आई हैव टू बी, मुझे केयर लेना पड़ेगा व्हेन आई एम टॉकिंग टू देम, है ना? ये आप कर सकते हो. अगर आप थिंक करते हो कि आई कांट गो डायरेक्टली टू माई बॉस एंड आस्क हिम व्हाट डू यू मीन, ऑब्वियसली यू आर ऑल्सो करेक्ट, देन टेक इट ऑन द फेस वैल्यू. टेक दैट, व्हाट ही मेंट इज व्हाट ही सेड, दैट्स ऑल. ओवर थिंकिंग से क्या कर रहे हो? यू आर स्पॉइलिंग योर ओन मूड, यू आर स्पॉइलिंग योर ओन थॉट्स, राइट? नेगेटिव थॉट्स आ जाएंगे, उसके बाद यू विल कीप ऑन थिंकिंग अबाउट दैट. हाँ, मैंने ये भी कहा था, अगर पॉजिटिव थाट्स ही आते हैं देन यू आर इन द गुड प्लेस, बट इफ यू आर गेटिंग नेगेटिव थॉट्स, आपकी सारी फोकस शिफ्ट हो गई है नेगेटिव की तरफ, राइट? इसके लिए क्या कर सकते हैं? हाउ कैन यू कंट्रोल दिस अर्ज इज ओनली बाय सेइंग योर सेल्फ दैट देयर इज नथिंग रॉन्ग इन व्हाट ही और शी सेड. इट्स जस्ट दैट दे मेंट व्हाट दे सेड. फिनिश हो गया. उसके बाद क्या होगा? यू विल नॉट ओवर थिंक, फर्स्ट थिंग. Second thing, you will not waste your energy on that. You will not give lots of energy to what happened. ये lots of energy देके वही बार बार उसी सीन पे जाने से क्या होता है? You are hurting yourself again and again if it's a negative thing. So ये नहीं है कि yes, exactly Deepti, it's better to accept the way it is. If it is negative, they said, if you can improve on that, then improve. If you cannot, then leave it there. उसकी गलती में क्या करूँ? I am perfect. कह लो आप खुद से. And then stop it there, leave it there. उससे क्या हो जाएगा? You are on the safe side, you are on the happy side, right? हाँ, अगर आपको लगता है कि I can go there and ask him or her, then please go and ask, otherwise leave it. But if you keep on thinking about it again and again, you are putting yourself into the hurt again and again. Bulb on. Super. क्या हो जाता है उससे? माइंड डजंट नो वॉट इज ट्रू एंड वॉट इज फॉल्स. क्या सच है, क्या झूठ है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, ये पता नहीं उसे. एंड वेन यू कीप ऑन थिंकिंग अबाउट इट एंड कीप ऑन पुटिंग योर सेल्फ इन टू द सेम थिंग, देन वॉट हैपन्स इज you start believing that negative is really happening. The negatives that you are telling yourself, you will start thinking कि हाँ ये सच है. तो उसके क्या होगा? उससे होगा कि you are increasing your negativity more and you are focusing on that same thing. You are hurting yourself. जिसने आपको कुछ बोला है, he is happy, he said it and he is happy. किसी ने उसे कन्फ्रंट भी नहीं किया, किसी ने जाके उससे पूछा भी नहीं, he is happy, but you are keeping yourself into the same situation again and again, just thinking इसका मतलब ये हो सकता है, इसका मतलब वो हो सकता है, and you are hurting yourself again and again. Hi Natarajan sir. The topic today is reading between the lines. आपको कुछ do you want to add something about this? Then I can take you into the
लाइव वीडियो। आपको कुछ ऐड करनी है? सो द सॉल्यूशंस फॉर दिस, व्हाट वी कैन डू सो दैट आई ऑल्सो ओवर थिंक। कभी कभी हो जाता है कि वी टॉक टू आवर मदर इन लॉस और फादर इन लॉस एंड देन वी कीप ऑन थिंकिंग, इसका मतलब क्या था, इसका मतलब क्या हो सकता था। अरे यार, व्हाट दे सेड एंड इट्स डन, दे आर हैप्पी विथ इट, राइट? We thinking again and again about it is making ourselves bad. We are spoiling our own mood, we are spoiling our own energy, giving them all the power to control. क्या हो रहा है? The moment when you start thinking about it again and giving all your creativity and your energy to that, just think what they might have meant. End of the day, they may not be meaning that what you are thinking, the negative that you are thinking, maybe they don't mean it. पर सिर्फ आप थिंक कर रहे हो that this negative may be the case they are saying, maybe this is the reason they said that. इससे क्या हो रहा है? You are hurting yourself. So what are you supposed to do? Take it on the face value or else tell yourself that no, इसको कहते हैं auto suggestion. You have to suggest yourself, keep on telling yourself the positive in it, so that the subconscious mind starts to believe that there is positive only in it, there is nothing, no threat or nothing in this. इसके reading between the lines करके you understanding something that you want to understand makes the scene much worse. Hi Vignesh, thank you for joining. So anything anybody wants to add in this? Comment down please, anything anybody wants to add or wants to say something about it. So what are we supposed to do is, better don't read between the lines. अगर वो सच है तो then if you feel really hurt by whatever happened, better go to the person directly and ask them, point one. Otherwise take it on the face value and then just think that it is what it is, they said, that's all. इसमें अपनी खुद की क्रिएटिविटी बहा के थिंकिंग मोर अबाउट इट इज़ नॉट एट ऑल नीडेड. वाई? बिकॉज दैट वे यू आर unnecessary putting yourself into lots of hurt again and wasting a lot of energy also, right? So hello. हाँ, तो मैं ऑनलाइन में सर्च कर रही थी गूगल में कि व्हाट इज़ दिस. बेसिकली रीडिंग बिटवीन द लाइन्स के बारे में आई वाज सर्चिंग. सो ऑल दिस हिस्ट्री आई फाउंड फ्रॉम गूगल. Just give me a second, let me open that. Gone somewhere. हिंदी और इंग्लिश में दोनों का मैं विस्तार से आई कांट अंडरस्टैंड यू. हाय करणजोत. हिंदी में इसको क्या कहते हैं? रीडिंग बिटवीन द लाइन्स मुझे नहीं पता. खुद की मतलब निकालना शायद. इंग्लिश में एलॉबरेट. अच्छा, हाय. हाँ, हिंदी में बतानी है तो छोड़ दो वहीं पे, उसके बारे में ज़्यादा सोचना मत कि उनका मतलब क्या हो सकता था. शी इज़ आस्किंग टू एलॉबरेट. हाँ, वही कर रही हूँ. एक्चुअली मैं दोनों लैंग्वेजेस में बोल रही हूँ. ओके, छोड़ दो वहीं पे. अगर आपको लगता है कि इससे मुझे हर्ट हुआ है, मुझे अच्छा नहीं लगा उसने जो कुछ भी कहा, देन जाइए एंड देन आस्क देम. उनसे पूछिए व्हाट डू यू मीन, इसका मतलब क्या है, क्यों कहा था इसे. पूछ नहीं पाओगे, हो सकता है ये आपके बॉस ने कुछ कहा होगा एंड आप उनसे जाके पूछ नहीं सकते हो, राइट? तब क्या करोगे? जस्ट वहाँ तक ही थिंक करो कि उसने ये जो कुछ भी कहा है वही कहा है, छोड़ दो वहाँ पे. उससे ज़्यादा थिंक करने से आप खुद को ही अननेसेसरी हर्ट में डाल रहे हो. बार बार अपने खुद को ले जा रहे हो वहाँ पे. जिसने भी आपको कुछ भी कहा है वो तो वही के छोड़ दिया, चला गया. ही इज़ हैप्पी. वो तो अच्छे, उसे तो अच्छा लगा कि आपको सुना दिया 2 बातें, चला गया.
पर आप क्या कर रहे हो, बार बार उसी प्लेस पे जा रहे हो और खुद को फिर से वही हर्ट पे रख रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन मुझे इंग्लिश में ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा, तो आप ही के लिए तो ट्रांसलेट कर रही हूँ पूरा मैं भी। दिया शंकर जी, आप ही के लिए ट्रांसलेट कर रही हूँ। ओके, तो द पॉइंट इज़, अब जो कुछ भी हुआ है वहीं पे छोड़ दो, ज़्यादा उसके बारे में सोचो मत, क्योंकि माइंड को ना, हमारे दिमाग को ना ये नहीं पता कि सच क्या है झूठ क्या है। अगर आप बार बार वहीं पे जाके आपको जो कुछ भी नेगेटिव लग रहा है उसमें से वो आप बताते ही रहोगे, तो माइंड क्या से सोचेगा कि यही सच है। वॉट एवर नेगेटिव आप कह रहे हो उसे वही सच समझेगा। उसके बाद ज़्यादा एक के बाद एक, जैसे कपड़े फोल्ड करके रखते हो ना, एक के ऊपर एक, ऐसे स्टैक होने लगेगा। तो इससे क्या हो जाएगा, यू विल बी मोर हर्ट, खुद को आप ज़्यादा दर्द देने लगोगे, राइट। लेकिन वहाँ तो इतना ज़्यादा कुछ हुआ ही नहीं था। अगर आपको डाउट है कि उसने इतनी डबल मीनिंग में आपको हर्ट करने के लिए कहा था, देन जाइए एंड उससे पूछिए, उस थर्ड पर्सन से आप पूछिए, जिसने भी कुछ भी कहा हो उससे पूछिए। बट इसका मतलब ये नहीं कि वी आर वेरी इंटेलिजेंट हो आप, इसलिए आप सोच पा रहे हो इतना, नहीं। इसका मतलब है कि आप खुद को इतना ज़्यादा अननेसेसरी दर्द दे रहे हो। तो ज़्यादा मत सोचिए, ज़्यादा सोचने से यू आर वेस्टिंग योर एनर्जी, आप खुद की एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। एंड बिकॉज वी आर ऑल वाइब्रेशनल बीइंग्स, यू आर गिविंग ऑल योर एनर्जी, अपनी खुद की जो एनर्जी है उसे दे रहे हो, राइट। इसका मतलब ये था, मुझे और पता नहीं मैंने कुछ और कहा है, हिंदी में ट्रांसलेट किया या नहीं। बट आई बिलीव आपको, अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हो तो आई बिलीव कि आपको इंग्लिश समझ में आता होगा, राइट। हाय रश्मि, ओके, सुपर। तो दिया शंकर जी, आपने कभी ऐसा वाला सिचुएशन देखा या है ऐसा कोई सिचुएशन? मैं समझ गया हूँ, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, मेरी हिंदी आपको समझ में आई। गुड दैट आई कुड टेल यू एवरीथिंग, मैं पूरा आपको बता पाई हूँ। हाँ, ऐसे वाला कोई सिचुएशन था आपकी लाइफ में, कुछ ऐसा हुआ था? हेलो, आपने कैसे डील किया था उस सिचुएशन से? आप समझ गए हो, सुपर। ऐसे तो नहीं हुआ, सुपर। यूजुअली ना वुमेन डू दिस, है ना। अगर कोई झगड़ा हो जाती है मदर इन लॉ से या झगड़ा हो जाती है डॉटर इन लॉ से, तो दे स्टार्ट डूइंग दिस, दे रीड बिटवीन, उसने ये कहा था, क्यों कहा था, दे विल हैव देयर ओन, उसे जो कहना है वो खुद से कह लेगी कि इसने इसीलिए कहा था, तब भी यही कहा था। क्या हो जाता है उससे, आपकी ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं ना वो लिटअप हो जाते हैं। ऐसा वाला हर्ट कभी भी हुआ हो आपकी ज़िंदगी में, तो वहाँ जाता है आपकी सारा एनर्जी, उससे क्या हो जाता है, एंड यू विल स्टार्ट थिंकिंग ऑफ ऑल द नेगेटिव्स दैट हैपन, बाकी के सब कुछ जो कुछ भी हुआ है नेगेटिव उस सिचुएशन में, तो वो सारा आप याद करने लगोगे, एंड यू विल पुट योर सेल्फ इन टू दैट हर्ट ऑल्सो, उस हर्ट में भी रख लोगे खुद को, है ना। ये इसमें किसी का भी मिस्टेक नहीं है, राइट। इट इज़ वॉट हैपनिंग बिकॉज ऑफ योर माइंड, माइंड में जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, इसकी वजह से वी विल स्टार्ट थिंकिंग ऑल ऑफ दिस। तो इसको कैसे कंट्रोल करेंगे, ओनली एंड ओनली सोल्यूशन क्या है कि ऑटो सजेशंस दो अपने आप को। ऑटोमेटिकली जब ऐसी नेगेटिव थिंकिंग स्टार्ट हो जाएगी तो अपने आप को बोलो कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सबकॉन्शियस माइंड को इससे, हो सकते हैं कि बहुत सारे टेक्निक्स हो, बट दिस इज द ईजिएस्ट टेक्निक टू कंट्रोल। ओके, कुछ पूछनी है आपको? एनी डाउट्स? एनीबडी वांट टू आस्क समथिंग, और एनीबडी वांट्स टू ऐड समथिंग?
डिसीजन मेकिंग माइंड कंट्रोल क्या है वो? हाँ, डिसीजन मेकिंग है एंड माइंड कंट्रोल भी है। तो आप क्या कहना चाहते हो? यू वॉन्ट टू टेल अबाउट दैट और यू वॉन्ट टू आस्क अबाउट दैट? उसके बारे में पूछनी है आपको या आपको कहनी है उसके बारे में? डिसीजन मेकिंग इज कम्प्लीटली डिफरेंट टॉपिक है वो शायद। माइंड कंट्रोल, हाँ, इसमें माइंड कंट्रोल के बारे में ही बता रही हूँ मैं आपको। सबकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड दोनों है ना, तो इसमें दिस इज़ वेयर सबकॉन्शियस माइंड यू हैव टू कंट्रोल। ये सारा जो आपको डिफरेंट थॉट्स देता है वो सबकॉन्शियस माइंड है। उसमें सब कुछ स्टोर होके रहता है, ऑल नेगेटिव्स व्हाट हैपेंड, पॉजिटिव्स व्हाट हैपेंड, सब कुछ है उसमें। तो जब कुछ भी होता है ना तो ऑल दिस थॉट्स स्टार्ट, तब भी मेरे साथ यही हुआ था, लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था, लास्ट टाइम भी उसने यही कहा था। इसे करके आपके थॉट्स सारे आने लगते हैं। ऑल दिस इज फ्रॉम द सबकॉन्शियस माइंड। यहाँ अपने आप को कंट्रोल करके रखूँगा मेरा माइंड को। हाँ, आप भी खुद ही तो कर सकते हो, कोई हमें हेल्प नहीं कर सकता। अनटिल एंड अनलेस हम खुद को हेल्प नहीं करेंगे तो कोई हेल्प नहीं कर सकता, राइट? हमको खुद को कंट्रोल करके ही रखनी पड़ेगी, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड को तो पता नहीं कि क्या कहनी है क्या नहीं कहनी है, राइट? इट विल ऑलवेज थ्रो टेंट्रम्स, इट विल ऑलवेज थ्रो ऑल द नेगेटिव्स दैट मे हैपन। जो कुछ भी नेगेटिव हो सकता है सब थ्रो करेगी आप पे, सब बताएगी आपको, क्योंकि है ही इसीलिए आपको कॉशन करने के लिए सबकॉन्शियस माइंड। तो हमें ही उसे कंट्रोल करना पड़ेगा, राइट? माइंड हैज़ टू वर्क फॉर यू, नॉट दैट माइंड डिसाइड्स हाउ यू हैव टू वर्क। तो वो कैसे करेंगे? द ईजीएस्ट मेथड इज़ टू ऑटो सजेस्ट इट व्हाट इट हैज़ टू डू, व्हाट यू वांट। आपको क्या चाहिए उससे? पॉजिटिव ही चाहिए तो आप पॉजिटिव ही थिंक करोगे। ये आप ही को बताना पड़ेगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड को। We have 7 more minutes. Yes. Decision making शायद is in your hands, but sticking to your decision again decides your subconscious mind. कि एक डिसीजन लिया तो उसको स्टिक कर वहीं पे वही डिसीजन पे खड़े होने का जो ये है ना, वो आपके सबकॉन्शियस की हाथ में है। इट विल अगेन टेल यू, अलार्म रख के सुबह उठ नहीं पाते हो, देन सब दैट वॉइस दैट टेल्स यू कि थोड़ा देर और सो जाता हूँ, इज योर सबकॉन्शियस माइंड। वो आपको बता रही है कि थोड़ी देर और सो जाना, इट्स ओके, है ना? तभी आपको यू हैव टू स्टार्ट टेकिंग द कंट्रोल एंड टेल इट दैट दिस इज व्हाट इज डिसाइडेड। मैंने यही डिसाइड किया है तो मैं यही करूँगा। सो दैट इज वेयर, यस, वहाँ पे भी यू आर द वन हु इज सपोज टू, द कॉन्शियस माइंड इज व्हाट सपोज टू कंट्रोल द सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड को ही कंट्रोल करना पड़ेगा, सबकॉन्शियस माइंड को भी। डिसीजन मेकिंग एंड स्टिकिंग टू योर डिसीजन इज इन योर हैंड्स। यस, हाय श्रद्धा, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। अभी 6 मिनट में क्लोज ही करने वाले थे। So the topic was reading between the lines. How we misuse it and how we can use it for our positives is what we were discussing. So I was telling that it is from the early 19th centuries, and तब इसको यूज़ करते थे because secret service people used to use to get the information from one country to another country. If there is a war coming or something happening na, then they used to bring the information. तो इसके लिए यूज़ करते थे this so called reading between the lines. By the end of 19th century it has become like the normal phrase that we are using now. Idiom हो गया। तो I was telling about that.
and what is it that happens when we start reading between the lines and then think कि उसके उसमें पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव इज देयर, और सम नेगेटिव्स वी स्टार्ट थिंकिंग, तो हाउ इट विल अफेक्ट आवर पीस ऑफ माइंड, इसके बारे में बात कर रहे थे. हे संगीता. So yes, you want to add some, anybody wants to add something on this about reading between the lines? Hi. Oh, okay. If anybody wants to add something, you can add, otherwise we can close. Hello Hina. यार लेट हो गए हो. I was talking about reading between the lines. I was missing you and Rehmeen also. We had a nice chat the last time, right? So I was telling about the history of the so-called phrase, how it became a phrase. No problem. So today I tried a different music that I have found in YouTube, which says royalty free, so you can use it kind of. तो अभी देखते हैं होगा या ये भी डिलीट कर देंगे. Last time one was deleted. The last time Ask Koala Live was deleted. So this time I was very careful about the music. So you want to add something, Hina, about thinking, overthinking? This is what is called overthinking, guys. So you want to ask or say or add something, Hina? Shall we close? मेरी पर्सनल वाली एक्सपीरियंस बताऊं रीडिंग बिटवीन द लाइन्स. तो मेरी एक क्लाइंट थी, राइट? तो उसकी ओके छोड़ो. Anyone wants to add something, or shall we close it and say bye bye? Okay guys, I'm also tired. Okay, thank you for joining. This is a way of overthinking. When we think that it's our creativity and I'm so intelligent, I can understand them. Even if they don't say it, I can understand what they are trying to say, and we start to overthink, add our own meaning. अगर आपकी इस बंदे के साथ, if the interaction is positive, whatever you add there is becoming positive. But if it is negative, say for example a mother-in-law and daughter-in-law का interaction हुआ, तो you will start adding negatives to that interaction. उसके reading between the lines is not your intelligence, wherein it is our foolishness to add all the unnecessary negatives to it, right? उससे क्या होगा, हमारी खुद की ही peace of mind effect होगा, right? Wherein they may not be, even they have the ball in their court to say that I did not mean that, right? It's you who is adding all the unnecessary meanings to it. If it is positive, then yes, it's all good. But if it is negative, then आपकी focus सारा negative पे जाएगा, and focus is very important to get the results also. So focus कहाँ भी जाता है, आपकी energy सारा वहाँ जाता है, and you are getting back whatever you are focusing on. So that is the summary of the entire thing. Okay, see you all again on Monday. Thank you for joining. Bye bye.